थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे પોતાનું સ્થાન ओ मेरा रंग से बसंती આપણી વચ્ચે માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી પધારી ચૂક્યા છે। હું આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી, પંજાબના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવંત માન સાહેબ બંનેનું આપણી અમરેલીની ધરતી ઉપર જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ છીએ દોસ્તો આપણે બધા। અને જેમ હું વાત કરતો હતો કે ગામડાના માણસ માટે, ખેતી કરતા માણસ માટે, ખેતી મજૂરી કરતા માણસ માટે, નાના મોટા કામ કરી અને પોતાનું જીવન ગુજારા કરતા સામાન્ય માણસ માટે આ ભાજપની સરકારને કોઈ ચિંતા કે કોઈ ફિકર નથી। અને એટલે આપણે બધાએ ભેગા મળીને આપણી પોતાની આપણા જેવા માણસોથી બનેલી આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બને એના માટે થઈ આગળ આવવાની જરૂર છે દોસ્તો। આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર દિલ્હીમાં બની તો અરવિંદ કેજરીવાલજી દેશના પહેલા એવા નેતા છે કે જેણે 1 હેક્ટર દીઠ 50,000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય આપવાની યોજના જાહેર કરી હતી। દેશના ઇતિહાસમાં કોઈ રાજ્યમાં ક્યારેય ખેડૂતોને જો ખેતીમાં નુકસાન થાય તો 1 હેક્ટરે 50,000ની સહાય કોઈ રાજ્યએ ચૂકવી નથી। એ કામ પહેલું વહેલું અરવિંદ કેજરીવાલજીએ દિલ્હીમાં કરી બતાવ્યું દોસ્તો। અને એના કરતા પણ આગળની વાત, હમણાં જ માવઠું આવ્યું થોડાક દિવસ પહેલા, એની પહેલા માવઠું આવ્યું હતું દોસ્તો। આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી અહીંયા જે અત્યારે બેઠા છે પંજાબના, એમણે એક આખો નવો વિચાર રજૂ કર્યો કે માવઠું આવે, ખેતરમાં નુકસાન થાય અને જેણે ભાગવું ખેતર રાખ્યું હોય, વાવવા ખેતર રાખ્યું હોય, એને પણ અલગથી સહાય ચૂકવવાની યોજના સરદાર ભગવંત માન સાહેબે બનાવી। ખેડૂતને તો નુકસાનીના પૈસા દેવાના, પણ ભાગવું રાખ્યું હોય એને પૈસા દેવાના, એવું કામ કરનારા વ્યક્તિ આપણા અમરેલીમાં આવ્યા છે। ત્યારે હું લાંબી વાત નહીં કરું, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આપણે આપણા આગેવાનોને સાંભળીએ। ખૂબ ખૂબ આભાર ગોપાલભાઈ। હવે આપણે આંગણે પધાર્યા છે માનનીય કેજરીવાલ સાહેબ અને ભગવત માન સાહેબ, તેમના સ્વાગત માટે હું આમંત્રણ કરીશ હિરેનભાઈ વિરડિયા અને કાંતિભાઈ સતાસિયા બંને ભગતસિંહની છબી દઈને સ્વાગત કરશે બંને। એમની સાથે તમામ સ્ટેજ ઉપર બિરાજમાન લોકો જોડાશે। જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત થવું જોઈએ આપણી આંગણે આવ્યા છે તો। થેન્ક યુ। તમામ બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે। આપણે આંગણે પંજાબના લોક લાડીલા અને માનનીય ભગવત માનજી પધાર્યા છે, ત્યારે સરને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે અમરેલીની ધરાને સંબોધન કરે। જોરદાર તાલીઓથી એમનું સ્વાગત કરવામાં। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। अमरेली के आसपास के गांव से इतनी भारी संख्या में आप लोगों का आम आदमी पार्टी की इस सभा में चले आना इस बात का संकेत है, इस बात का सबूत है कि आप लोग अगले इलेक्शन में विधानसभा में भी और इस इलेक्शन में जो जिला पंचायत के हो रहे हैं और लोकल बॉडीज के ब्लॉक समिति के तालुका के वोट हो रहे हैं, उसमें आप एक नई कहानी लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये इस बात का सबूत है। सबको मेरी प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मंच पर आसीन अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने आम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी बनाई, आम लोगों की भलाई के लिए आम आदमी पार्टी बनाई, और वो पार्टी इतना तेजी से देश में फैली कि आज वो 10-12 साल की उम्र में पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बन गई है। क्योंकि इसमें आम व्यक्ति आते हैं, आम लोगों की भलाई के लिए कानून बनते हैं। जैसा कि मेरे से पहले गोपाल इटालिया ने भाई ने बोला कि दिल्ली में जब सरकार चल रही थी तब स्कूल बहुत अच्छे हो गए थे सरकारी, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती थी, फ्री इलाज मिलता था गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की जिंदगी में सुधार आ गया था।
रोजगार मिल रहे थे लोगों को। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई, सब कुछ बंद कर दिया भाई साहब, सब कुछ उठा के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। वही प्राइवेट स्कूल जो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री होते समय फीस नहीं बढ़ा पाते थे, आज सबसे ज्यादा मनमर्जी वही स्कूल कर रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार चल रही है, माएं बहनें बैठी हैं, इनके बिना अगर घर नहीं चल सकते तो इनके बिना देश भी नहीं चल सकता। अगर देश में मां और बहन का आशीर्वाद मिल जाए तो आदमी कोई भी मंजिल सर कर सकता है। 10 लाख रुपए का इलाज पंजाब में हर परिवार का कार्ड बनाने लगे हुए हैं हम। 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी अस्पताल में, जहां से आपका दिल करता है आप करवा लीजिए। 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त कर दिया है जी। अब पंजाब में किसी का बाप या किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा इसलिए इलाज से वंचित नहीं रहेगा कि उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। ये पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में जो डोमिसाइल है, जिसका पंजाब का आधार कार्ड बना हुआ है, वो 10 लाख रुपए तक का पूरा परिवार उसका जो जीवन बीमा निगम में हमने कर दिया है भाई साहब। अभी अभी हमने जो गारंटी दी थी कि महिलाओं को, जनरल वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और अनुसूचित जाति और एससी वर्ग जो पछड़े दलित भाई हैं हमारे, उनकी महिलाओं को 1500 रुपए पर महीना, हर महिला को 1500 रुपए पर महीना अगर वो दलित परिवार से है, और 1000 रुपया पर महीना अगर वो जनरल परिवार से है, हर महीने उनको पैसे मिलेंगे 18 साल से ऊपर। एक घर में चाहे 3 हैं महिलाएं, 4 हैं, उनको उतने पैसे मिलेंगे। ये मान सम्मान दे रहे हैं हम, क्योंकि माओं का आशीर्वाद, बहनों की दुआएं अगर मिल जाएं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता भाई साहब। आने वाले चुनाव में आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि वो भी आएंगे जो इससे पहले 30 साल हो गए बीजेपी को, भाजपा जन को 30 साल हो गए लूटते हुए भाई साहब। 30 साल आप लोग जाएं कहां? कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है। आप किसके पास जाओगे? कांग्रेस के पास। कांग्रेस वाले उनके साथ मिले हुए हैं। एक पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी। आप झाड़ू का चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए, ये जो 30 साल से गंदगी यहां पे राजनीतिक तौर पे जो हुई है, सबकी सफाई कर देगा। झाड़ू सफाई करेगा सब। वो बटन जो मशीन का बटन है, एक बात मेरी याद रख लेना कि भगवंत मान आया था अमरेली में, जो मशीन का बटन है वो किसी का नहीं है। वो बटन ना तो कमल के फूल का है, वो बटन ना ही हाथ पंजे का है, वो बटन ना ही किसी दाती हथौड़े का, ना किसी हाथी का, ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके और आपके परिवार के भविष्य का बटन है, फ्यूचर का बटन है, किस्मत का बटन है। अगर झाड़ू वाला बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी। अगर पहले वाले ही बटन दबाओगे 10 साल 5 साल और गिरवी रख दोगे अपनी किस्मत को इन लुटेरों के पास। इन लुटेरों के पास बर्बाद करके रख दिया इन्होंने गुजरात को। गुजरात का झूठा मॉडल बेच गए देश में। आज देश का बुरा हाल है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंपों पे, तेल नहीं मिल रहा। मोदी जी पता नहीं विदेशों में जाकर क्या करते रहे, क्यों मिलते रहे। एक भी देश हमारे लिए पक्ष में नहीं बोल रहा भाई साहब। क्या करेंगे? किसानों की बात कहां चली है? पंजाब भी खेती प्रधान सूबा है, वहां के किसान सब कुछ उगा सकते हैं। अभी हमारे गेहूं की फसल रेडी हो जाएगी बैसाखी के आसपास, अप्रैल 12, 13, 15 के आसपास। अभी गेहूं 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम देश को। फिर चावल उगाते हैं हम 185 लाख टन चावल देते हैं। और किसान की फसल का एमएसपी पे, गेहूं का भी चावल का भी एमएसपी पे भाव मिलता है। और मंडी में अपनी फसल लेके आता है, जब तक उसको ट्रैक्टर ट्राली घर पे लेके जाता है तब तक उसके पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं, उसके खाते में आ जाते हैं भाई साहब। मुझे पता चला है
गुजरात में कई कई महीने पैसे ही नहीं आते फसल के, सही है ना? फसल के पैसे नहीं आते। जो किसान ने कर्जा लेके फसल उगाई, वो कर्जे का ब्याज ब्याज दर ब्याज ब्याज दर ब्याज कर्जा बढ़ता जाता है। फिर कई बार कुछ किसान भाई खुदकुशी तक के कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो भाई साहब, अन्नदाता बोलते हो, दाता वो होता है जो किसी को कुछ ना कुछ दे। अन्नदाता बोलते हो, अन्न तो देता है, लेकिन उसको क्या देते हो बदले में? उसको बदले में जेल। हमारे चेत्र भाई और हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता किसानों के पक्ष में बोले, उन पर पर्चा करके जेल में डाल दिया भाई साहब, कि किसानों के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? हमें तो ये कीड़े मकोड़े ही समझते हैं बस, लेकिन इनको ये नहीं पता अब अरविंद केजरीवाल आ गया है, आपका भाई आ गया है, आपका बेटा आ गया है। अब आपको फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आपके दिल में बसती है। और हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो जिसको आप दिल से प्यार करते हैं, आज आपका इतनी भारी संख्या में यहां आना, ये इसी बात का सबूत है कि आप दिल से प्यार करते हैं अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को और झाड़ू को। और माएं बहनें बैठी हैं, इनको तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि झाड़ू चुनाव चिन्ह है हमारा। ये तो सुबह सुबह अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं 5 बजे कि कहां पड़ा है झाड़ू, और सफाई शुरू कर देती हैं। इस झाड़ू से पहले हम अपना मकान या दुकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान। क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली की गद्दी पर, वो समझते हैं ये राज हमारा है, ये दुनिया, ये देश जो है हमारी मुट्ठी में है। मैं उनको कहना चाहता हूं, किराएदार हो, मालिक मकान ये कोई जद्दी मकान थोड़ी है। किराएदार हो, मालिक नहीं, ये कोई जद्दी मकान थोड़ी है। अरे हम सबका खून मिला है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है, ये आपका देश है, ये आपका देश है, ये आप नौजवानों का देश है, ये बुजुर्गों का देश है, ये माओं का देश है, बहनों का देश है। इन्होंने चंद उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का देश बना के रख दिया भाई साहब। इसीलिए मैं आपको कहने आया हूं, जो भी इलेक्शन आएगी झाड़ू को जिताइए, अपने बंदों को जिताइए, क्योंकि हमारी पार्टी में जितने भी ये अमरेली के आसपास के, सौराष्ट्र के जितने भी यहां ओहदेदार बैठे हैं, ये आप लोगों के घरों से ही हैं। कोई इसमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले नहीं है, कम है, अच्छे बंदे हैं जो सेवा करने के लिए आए हैं। वरना 80 साल हो गए आजाद होए, अभी तक हमारे जो मांग पत्र हैं, जो हम एक कोई मांगे जो पूरी करने के लिए नेताओं को देते हैं, 80 साल बाद भी उसमें गांव के तालाब, उसमें सीवरेज के ढक्कन, उसमें शमशान की दीवार ऊंची उठा दो जी, अभी तक हमको यहीं रखा हुआ घुमा के, यहीं गरीबी में ही रखा हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाइए। पंजाब में इतनी अच्छी शिक्षा कर दी है सरकारी, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना है बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा लेना, प्राइवेट में पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेना, आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, प्राइवेट में फीस लगेगी, सरकारी में फीस भी नहीं लगेगी, लेकिन पढ़ाई एक जैसी है। पढ़ लिख के बच्चे अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तब आपके घरों की गरीबी खत्म होगी। ये कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड, नीला कार्ड से सिर्फ रोटी मिल सकती है, घर का नक्शा नहीं बदल सकता। हम लोग पढ़ाने आए हैं। ये बीजेपी कांग्रेस वाले आपको आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने आए हैं। अरविंद केजरीवाल आपके बच्चों को पढ़ाने आए हैं। आपने लड़ाई को वोट देना है या पढ़ाई को वोट देना है, ये फैसला आपने करना है, ये फैसला आप लोगों ने करना है। और ये इनको लगता है कि शायद हम इनके एमएलए को डरा लेंगे, पर्चा कर देंगे, अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया,
मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। तो माननीय दिल्ली की कोर्ट ने कहा कि ये तो मुकदमा भी नहीं बनता, बरी करने की बात तो छोड़ो, मुकदमा ही नहीं बनता, मुकदमा भी नहीं बना। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल कट्टर ईमानदार, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया, कचहरी ने डिक्लेयर किया कि इन बंदों पर कोई ऐसा आरोप झूठा जो टिक नहीं सकता। इनको लगता है हम इनको डरा लेंगे। अरे हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। भाई साहब, तो एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। दिल्ली में, पंजाब में दोस्तों मित्रों को पूछ लीजिए कैसी पार्टी है ये। खुली छुट्टी आपको। अगर किसी ने कह दिया नहीं, ये गारंटियां देते हैं लेकिन पूरी नहीं करते, वोट मत डालना भी। भाई साहब, एक ही नेता है देश में जो इलेक्शन से, चुनाव से 2 महीने पहले टीवी पर आकर कह देता अगर मेरे पिछले 5 साल के, पौने 5 साल के काम अच्छे लगे तो वोट दे देना, वरना मुझे वोट ना देना। भाई साहब, ये बात बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल है एक नेता। तो आप लोगों की भलाई के बारे में दिन रात सोचते हैं। आपके स्कूल अच्छे होंगे, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नौकरियों पे लगेंगे, आपकी सड़कें अच्छी होंगी, आपको खेती का पूरे से फसलों का भाव मिलेगा, रोजगार मिलेगा। पंजाब में 65,264 नौकरियां देकर आपके सामने खड़ा हूं। किसी का 1 रुपया भी साबित कर दो कि 1 रुपया भी करप्शन में, रिश्वत का या सिफारिश किसी एमएलए की लगी हो। यह काम होता है। नीयत साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। नीयत साफ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूं पंजाब से ये सुनेहा लेकर, भगत सिंह की धरती से, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से, गुरु नानक देव जी की धरती से आपको ये कहने आया हूं, सच के रास्ते पर चलने वालों की कभी हार नहीं होती। सच के रास्ते पे चलिए, आम आदमी पार्टी के साथ चलिए। आप लोगों के सफलता जो है वो आप लोगों के पांव छुएगी, आप लोगों के पांव छुएगी, ये मेरी गारंटी है। और आम आदमी पार्टी गारंटियां देती है, वादे नहीं करती, गारंटियां देती है और गारंटियां पूरी करती है। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल नहीं आता। भाई साहब, 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। और पंजाब में किसानों को बिजली मिलती है बिल्कुल मुफ्त, और बिजली भी दिन में मिलती है। दिन में 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती है। पंजाब का किसान अफसरों की तरह सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे अपना ट्यूबवेल बंद करके घर आ जाता है, कहता है कल चला लेंगे, मेरा ऑफिस का टाइम ऑफ हो गया, छुट्टी हो गई। ये इज्जत मान हम किसानों को देते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो। ये भगत सिंह का नारा था इनकलाब का। हमारी पार्टी में दूसरी पार्टियों की तरह बंदे का नारा नहीं चलता। हमारी पार्टी में वंदे मातरम का नारा चलता है। इनकलाब। थोड़ा सा और जोर लगा दो, पहुंचे। अभी बीजेपी वाले भी 2-4 आए होंगे यहां पे इसी सभा में। अरे भेजते हैं वो कि चेक करना अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे थे, भगवंत मान क्या बोल रहा था, वो तो चलो बता देंगे। फिर वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। कम से कम उनको ये बताने की जरूरत ना पड़े कि नारे कितनी जोर से लग रहे थे, उनके घरों तक वैसे ही नारे पहुंचा दो, उनके घरों के शीशे हिल जाएं। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की वंदे, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तरक्कियां करो और आगे बढ़ो, गुजरात को तरक्की मिले, यही हमारी दिल से कामना है। गुजरात आगे बढ़ेगा, पंजाब आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद भगवत मान साहब नो। આપણને સરસ મજાની વાત કરી। સર, अभी हमारे बीच में जो समंदर में जाके खेती करते हैं, वो समंदर के हमारे साथी खलासी यहाँ उपस्थित है, वो आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैं पुरुषोत्तम भाई को विनती करूंगा, हमारे कोली समाज के जो आगेवान हैं, राजू भाई और ब्रिजराज भाई, ईशू भाई, गोपाल भाई भी जोड़ेंगे। वो जहाज आपीने अरविंद केजरीवाल जी નું સ્વાગત કરે છે। આ દરિયાની અંદર ખેતી કરવા વાળા આપણા સાગર બંધુઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। આપણે એમનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ અને અરવિંદજીનું એ સ્વાગત કરશે। આપણે બધા તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ। બોલો ભારત માતા की। खूब खूब आभार
સૌ સાથીઓનો હવે આપણે જેની રાહ જોઈને ક્યારના બપોરના આપણે આ તડકામાં દૂર દૂરથી આવ્યા છે અને જેમણે દેશની રાજનીતિની અંદર ઈમાનદારીની વાત કરી અને નખશીક ઈમાનદાર એવા કટ્ટર ઈમાનદાર એવા માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજીને હું વિનંતી કરીશ કે આપણને સૌને માર્ગદર્શન પૂરું પાડે અને ગુજરાતની આ પરિવર્તનની લડાઈને આગળ ધપાવે. માનનીય અરવિંદજી, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे. भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे. आज सौराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. केम छो? आई लव यू. मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में, दूर दूर तक, जहां तक नजर जा रही है, इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं और इतनी भारी संख्या में मां बहनें आई हैं अपने अपने घर से समय निकाल के. इतनी धूप में आप सब लोग बैठे हुए हैं. मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना प्यार, इतना मान सम्मान हम लोगों को दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. दोस्तों, सौराष्ट्र बहुत पवित्र धरती है और सौराष्ट्र की धरती को मैं नमन करता हूं. यहां सोमनाथ भगवान का मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है. दूर दूर से, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का. आज मैं भी सौराष्ट्र आया हूं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, देश की तरक्की के लिए, आप सब लोगों के, गुजरात के सभी लोगों की तरक्की के लिए, सुख समृद्धि के लिए. और जो 30 साल से गुजरात पे बीजेपी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, बीजेपी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का कुशासन, उससे भगवान मुक्ति दिलाए गुजरात के लोगों को. ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए मैं आज सौराष्ट्र की धरती के ऊपर आया हूं. सौराष्ट्र में 48 सीटें हैं, विधानसभा की 48 सीट है. पिछली बार 2022 में आप लोगों ने 48 में से 40 सीट बीजेपी को दी, भाजपा को दी. 40 सीट. इससे ज्यादा और प्यार क्या देंगे आप? 48 में से 40 सीट भाजपा को दी. इससे ज्यादा प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान और क्या दे सकते हैं? अब आदमी अपना सीना चीर के थोड़ी दिखाएगा, अपना हाथ काट के थोड़ी देगा. इससे ज्यादा आप क्या देंगे? और बदले में आपको क्या मिला? धक्के मिले, गालियां मिली, अपमान मिला, डंडे मिले, जेल मिली. क्या दिया भाजपा ने पिछले 4 साल, 30 साल से क्या दिया भाजपा ने आपको? आपने भाजपा को प्यार देने में, अपमान सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बदले में मिले डंडे, जेल, गालियां, अपमान, धक्के, भ्रष्टाचार, ये मिला. और आपका वोट लेके भाजपा ने क्या किया? आपका वोट लेके भाजपा के लोग मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, गाड़ियां आ गई बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बंगले बन गए, खूब प्रॉपर्टी बन गई, दुकानें आ गई, मॉल, बड़े बड़े मॉल खुल गए उनके. इतना पैसा कमा लिया इन्होंने, इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने. 30 साल के अंदर भाजपा ने लूट लिया आप लोगों को. इतना भ्रष्टाचार. सड़क बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है. क्यों? पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाता है. मोरबी का पुल टूट गया, बड़ौदा का पुल टूट गया, 2 दिन में इनका पुल टूट जाता है. क्यों? कहां जाता है पैसा सारा? अभी मेरे को सुबह किसान मिलने के लिए आए कुछ. उन किसानों ने बताया थोड़े कुछ महीने पहले मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई. सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा ऐलान किया. किसानों को नहीं मिला मुआवजा. मिला किसानों को मुआवजा? मूंगफली की फसल बर्बाद का मिला मुआवजा आप लोगों को?
किसानों को नहीं मिला मुआवजा। कहां गए 10,000 करोड़? खा गए सारा पैसा, खा गए। इतना भ्रष्टाचार। एक आदमी यहां बता दे, अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? बिजली का बिल गलत आता है, आप ठीक कराने जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? जाति प्रमाण पत्र, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी काम कराना हो बिना पैसे के होता है। गुजरात के अंदर 30 साल के अंदर रेट बढ़ गए करप्शन के। बस इतना किया इन्होंने। पहले 100 रुपए में काम होता था, अब 10,000 रुपए में काम होता है। इतना भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। आप 30 साल में पार्टियों को वोट देते आए, नेताओं को वोट देते आए, कुछ नहीं मिला। ये नेता किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। इस बार अपने आप को वोट दो, अपनी सरकार बनाओ, जनता की सरकार बनाओ। इस बार कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, किसी नेता को वोट नहीं देना। पंजाब के देखो, पंजाब के लोगों ने अपनी सरकार बनाई, कोई पार्टी की सरकार नहीं है। आप कहोगे केजरीवाल जी आप कैसे कह रहे हो? आम आदमी पार्टी भी तो पार्टी है। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन का नाम है। आम आदमी पार्टी क्रांति का नाम है। आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन का नाम है। इस देश को तरक्की देने का नाम है। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। भगवंत मान कोई नेता नहीं है, किसान का बेटा है। इसके पिताजी टीचर थे, इसके पिताजी कोई नेता नहीं थे। मेरे पिताजी कोई नेता नहीं थे। ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा, मनोज सोरठिया, हमारे जितने, किसी के पिताजी नेता नहीं थे। हम कोई पॉलिटिकल परिवार, हम आम लोग हैं, आपके बच्चे हैं। पंजाब में आम लोगों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की आम लोगों की सरकार है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। हमारे 96 एमएलए हैं, 117 में से 96, 96 में से 80 से ज्यादा पहली बार लड़के लड़कियां एमएलए बने हैं। पहली बार आम परिवारों के, आपके बच्चे। यहां पे एमएलए का बेटा एमएलए, एमएलए की बीवी भी एमएलए, एमएलए का बाप भी एमएलए। बीजेपी भाजपा के नेताओं के बच्चों को ही टिकट मिलती है कि नहीं मिलती? आपके बच्चों को टिकट देते हैं? आम आदमी पार्टी आपके बच्चों को टिकट देती है, आम सरकार बनाती है, आम लोगों के मुद्दे उठाती है। इसीलिए पंजाब में, पंजाब भी खेडूतों की धरती है, किसानों की धरती है। गुजरात भी खेडूतों की धरती है, किसानों की धरती है। पंजाब के अंदर खेडूतों के लिए काम होता है। यहां पे मुझे बताया, गुजरात में कभी रात को 3 बजे बिजली आती है खेती की, कभी 4 बजे आती है कि नहीं आती रात को बिजली? पंजाब में 8 घंटे बिजली आती है, दिन में बिजली आती है, लगातार बिजली आती है। सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक बिजली आती है किसानों की। पहले नहीं आती थी, क्योंकि ये किसान का बेटा, इसने आते ही पूरा सिस्टम बदला। अब किसानों की दिन में 10 बजे से 6 बजे तक बिजली आती है। पहले पंजाब की 20% धरती सिंचाई होती थी, पानी नहीं आता था, खेती को पानी नहीं मिलता था। पिछले 4 साल में अब पंजाब में 70% खेती का पानी घर खेत, हर खेत के अंदर जाता, 70%। और अगले साल तक 90% पंजाब की धरती को खेती का पानी मिलना, इरिगेशन का पानी मिलना चालू हो जाएगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब अकेला राज्य है जहां खेती की बिजली मुफ्त कर दी मान साहब ने। खेती, किसानों को पैसे नहीं देने पड़ते, खेती की बिजली मुफ्त है। गुजरात में भी खेती की बिजली मुफ्त है क्या? पैसे देने पड़ते हैं। 30 साल में क्या मिला आप लोगों को? इतना वोट दिया आपने इनको, क्यों? क्योंकि यहां पे नेताओं की सरकार है, यहां अमीरों की सरकार है, यहां पे करोड़पतियों की सरकार है, यहां पे भाजपा की सरकार है। पंजाब में आम आदमी की सरकार है, जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। पंजाब 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं। पंजाब में कोई अपनी फसल बेचने जाता है मंडी में, जितने भी किसान धान या गेहूं लेके आते हैं, जितना भी लेके, सारी फसल सरकार खरीदती है, सारी फसल। कोई किसान को वापस नहीं भेजते। जितना गेहूं, जितना धान किसान लेके आता है, सारा का सारा सरकार लेती है, किसी को वापस नहीं भेजते। और सवेरे लेके आता है
मंडी में बेचता है, शाम को घर जाता है, जब तक घर पहुंचता है बैंक का मैसेज आ जाता है आपके खाते में पैसा पहुंच गया। शाम तक पैसा पहुंच जाता है। मैं यहां पे अखबार पढ़ रहा था, 3-3 महीने तक खेडूतों को अपनी फसल के पैसे नहीं मिलते। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, बता देना। 3-3 महीने तक पैसे नहीं मिलते आप लोगों को। क्यों? यहां नेताओं की सरकार है, उन्हें परवाह ही नहीं है आप लोगों की। वहां पे आम आदमी की सरकार है, खेडूतों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है वहां पे। यहां पे मुझे बताया गया सौराष्ट्र में आम की खेती होती है, हर साल आम की खेती बर्बाद होती है लोगों की, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इनको पता भी होगा कि आम की खेती होती है और उन आम की खेती बर्बाद हो जाती है। इकोजोन का कानून बनाया है इन्होंने, पूरा का पूरा किसान समाज इकोजोन के कानून से परेशान है कि नहीं है? इकोजोन का कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ एक बारी। क्यों बनाया इन्होंने? इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको खेडूतों से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को। ये फॉरेस्ट विभाग वाले, वन विभाग वाले परेशान करते हैं कि नहीं करते रोज आप लोगों को? क्यों करते हैं ये लोग? बनाओ, जैसे पंजाब में खेडूतों के लिए काम होता है, ऐसे गुजरात के अंदर भी खेडूतों के लिए काम होना चालू हो जाए। आपने पिछली बार 48 में से 40 सीट भाजपा को दी। आपने पिछली बार 48 में से 4 सीट आम आदमी पार्टी को भी दी, बस 4 सीट दी। लेकिन हम बड़े आप लोगों के लिए, आप लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 4 सीट दी, खाता खोला आपने गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का। आज भाजपा के लोग आपको डंडे मारते हैं, उससे बचाने के लिए हमारे नेता डंडे खाने के लिए आगे आते हैं, जेल जाने के लिए हमारे नेता आगे आते हैं। जिनको आपने 40 सीट दी वो डंडे मारते हैं, और जिनको 4 सीट दी वो अपने छाती के ऊपर डंडा खा के जेल जाते हैं आप लोगों के लिए। चैतर वसावा जेल गए, परवीन राम जेल गए, हमारे कितने आजकल रोज हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। जब हमारे सबसे बड़े, जब मेरे को इन्होंने जेल में डाल दिया, मैं नहीं डरा, तो हमारी पार्टी इनके डंडों से और इनके जेल से डरने वाली नहीं है। आप सोचो, आपने 4 सीट दी, आज आपके लिए लड़ रहे हैं, कल गुजरात में आप अपनी सरकार बना लो, देखो क्या से क्या गुजरात का क्या नक्शा बदल जाएगा आपका। और पंजाब में इतने काम कर रहे हैं क्योंकि एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने देते। आपको जान के ताज्जुब होगा, आज सवेरे सवेरे आज भगवंत मान साहब ने अपने ही पार्टी के एक एमएलए को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहा था। कभी सुना है? कभी सुना है आपने कोई पार्टी की सरकार अपने एमएलए को जेल में डालती है? अगर पता चले कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो मुख्यमंत्री बुलाता है, आजा, कितने कमाए, मेरे को क्यों नहीं पहुंचाया, मेरे को इतने पैसे, करता है कि नहीं करता? मुख्यमंत्री अपना हिस्सा मांगता है कि तूने मेरे को दिए बिना कैसे कमा लिए। ये मुख्यमंत्री उसको पकड़ के जेल में डालता है कि तूने जनता का पैसा चोरी कैसे कर लिया। पंजाब के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया हम लोगों ने। सरकारी पैसा, एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च होता है। 24 घंटे हम ये सोचते हैं जनता का और क्या काम करें, और क्या काम करें। कुछ लोग आए मुख्यमंत्री से मिलने, मान साहब से मिलने, उन्होंने कहा सर घर में कोई बीमार हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, सीटी स्कैन बहुत महंगा है, दवाइयां बहुत महंगी है, एमआरआई कई हजार रुपए लग जाते हैं, कैंसर हो जाए तो कई लाख रुपए लग जाते हैं, कहां से लाएं, गरीब आदमी कहां से लाएं। आपको जान के ताज्जुब होगा, मान साहब ने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिस अस्पताल में मुख्यमंत्री का इलाज होता है उसी अस्पताल में मेरे किसानों का फ्री में इलाज कराया करूंगा मैं। 10-10 लाख रुपए का हर परिवार के लिए इंश्योरेंस करा दिया। 63 लाख परिवार हैं पंजाब में, 63 लाख परिवारों का, हर परिवार का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब
जो बड़े से बड़ा अस्पताल है, 5 स्टार, जहां पे करोड़पति अरबपति मुख्यमंत्री इलाज कराने के लिए जाते हैं, उस अस्पतालों में, उन अस्पतालों में अब गरीब किसान, गरीब मजदूर, रिक्शे वाले का बच्चा, आम आदमी का बच्चा अपना इलाज 10 लाख रुपए तक का फ्री में करा सकता है। उसको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। बड़ी बात है कि नहीं है? गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार जोर से हाथ खड़े करके बता दो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 लाख का इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, ये नेता नहीं करने वाले। अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये बीजेपी और कांग्रेस ने देश का बंटाधार कर दिया। अपनी सरकार बनाओ, आम आदमी की सरकार बनाओ। देखो मेरे को आज कोई कह रहा था, अहमदाबाद में कोई केडी अस्पताल है, अहमदाबाद में केडी अस्पताल है, अमित शाह जी अपना इलाज वहां कराते हैं। आप आम आदमी की सरकार बना दो, ऐसा इंतजाम करेंगे आपके पूरे परिवार का वहां पे फ्री में इलाज होना चालू हो जाएगा। केडी अस्पताल के अंदर जायडस अस्पताल है, वहां पे अरबपति करोड़पति अपना इलाज कराते हैं। आप आम आदमी की सरकार बना दो, आपका इलाज जायडस के अंदर फ्री में करवाने का इंतजाम कर देंगे, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आप लोगों को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो ये दूसरी पार्टी वाले आते हैं, आके गालियां देते हैं, केजरीवाल ऐसा, कांग्रेस ऐसी, भाजपा ऐसी। गाली में कुछ पड़ा है? मैंने पिछले 15 मिनट से मैं भाषण दे रहा हूं, मैंने किसी को गाली नहीं दी। मैं आपकी बात करता हूं, आपके परिवार की बात करता हूं, आपके बच्चों की बात करता हूं, आपके भविष्य की बात करता हूं, गुजरात के भविष्य की, गुजरात की तरक्की की बात। मैं गालियां नहीं देता किसी को, काम की बात करता हूं। हमने हजार रुपए अभी इंतजाम किया है हर महिला को। पंजाब के अंदर हर महीने 18 साल से ऊपर की महिला, हर महीने उसके अकाउंट में हजार रुपए जाया करेंगे। अगर एक घर में मां है, बहू है, बेटी है, 3 महिलाएं, तो 3000 रुपए महीना उसके परिवार को मिला करेगा हर महीने। इन विपक्ष की पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने इतना हमको गालियां दी, पैसे लुटा रहे हैं, क्या जरूरत है महिलाओं को देने की, महिलाएं तो बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुम इतना पैसा करोड़ों रुपए अरबों रुपया डकार गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी हजार रुपए में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम आदमी की सरकार बनाओ, गुजरात की सभी महिलाओं के अकाउंट में भी हजार रुपए आने चालू हो जाएंगे। दोस्तों अब जिला परिषद के चुनाव हैं। जिला परिषद के चुनाव में आपके बच्चों को टिकट देंगे। हमारे किसी के यहां जितने बैठे हैं, किसी के भाई को, किसी के पिताजी को, किसी के बच्चे को टिकट नहीं मिलने वाली, किसी को नहीं मिलेगी। आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। आप अप्लाई करो। आम आदमी पार्टी आपने चलानी है, आम आदमी पार्टी का नेता आपने बनना है, आपके बच्चों को टिकट मिलेगी। आपने अपनी सरकार बनानी है। जिला परिषद के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा, जिला परिषद का चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है। एक तरह से अगले 2 साल 1.5 साल के बाद असेंबली का चुनाव है गुजरात सरकार का, उसके पहले जिला परिषद के चुनाव में भारी वोट देके आपको आम आदमी की सरकार बनानी है। अपने बच्चों को आपको पंचायतों में, नगर पालिका में भेजना है, और इसी तरह से हमें सबको मिलके गुजरात को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना है। भारत माता की। खूब खूब धन्यवाद સરનો। આપણે અહીંયા જમવાની પણ વ્યવસ્થા છે, તો કોઈ સાથીઓ જે છે આરામથી કરે, અને આપણે બધા પોતપોતાની જગ્યા પર ઉભા રહીશું। આપણે રાષ્ટ્રગાન કરી અને આ કાર્યક્રમને પૂરો કરીશું। બધા પોતપોતાની જગ્યા પર ઉભા થઈ જાય। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।